Hello dear students, today we are going to discuss the topics of thermodynamics, first law of thermodynamics and second law of thermodynamics, and we will also discuss the limitations of first law of thermodynamics. तो सब तो पहला ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है कि इफ डी क्यू अमाउंट ऑफ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਕਿਊ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ ਕਿਊ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। then a part of it du is used to increase its internal energy, तो कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है एंड द रिमेनिंग पार्ट जो ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ that is used to perform the work। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ dq amount of heat is given ਤਾਂ dq is equal to du plus dw। ਠੀਕ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ कि dq is the amount of heat given, amount of heat added to the system। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਈਸਲੀ ਕਹੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। du is the increase in internal energy, ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ dw is the amount of work done by the system। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ this is first law of thermodynamics। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੀਟ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਹੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਜੇ ਹੀਟ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ, ठीक है ना, तो वो गैस एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन है तो वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। जो कंप्रेशन है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, एक कन्वेंशन है, याद रखिया जी। ठीक है, कन्वेंशनस बनाई जाती हैं ताकि सिस्टम्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, बट जो साइन कन्वेंशनस ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾइन कन्वेंशनस ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, कि जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, कि इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज है, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जो डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज जी है दैट इज टेकन एज नैगेटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशनस है जो कि डी क्यू डी यू तो डी डबल्यू ते अप्लाई होंगे। क्लीयर है, क्योंकि डी डबल्यू जो देखो ये वर्क डन है, तो डी डबल्यू किस दे इक्वल होंगे, डी डबल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ये अभी पहला किया सी कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, कि जो डी वी पॉजिटिव है, एक्सपेंशन है, तो वर्क डन पॉजिटिव होएगा, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो डी वी नैगेटिव है, कंप्रैशन होएगा, तो की होएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम होएगा तो नैगेटिव होएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम दैट इज यूज टू रेज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग अमाउंट इज यूज टू परफॉर्म द वर्क। ठीक है जी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डबल्यू, तो डी डबल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਡੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच चेंज कैन अकर। ठीक है, चेंज अकर कर रही है बट डायरेक्शन इन विच चेंज कैन अकर, इस तो की मीनिंग है, इसको ਅਸੀਂ समझते हैं। देखो देखो ਅਸੀਂ क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डबल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डबल्यू। इट मीन्स हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क और वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो कन्वर्शन है।
बट सानू डायरैक्शन ऑफ चेंज नहीं पता लगती। जिस तरह से एक एग्जाम्पल लेने कि एक बुलेट जी है स्ट्राइक करती है टारगेट के तो की होंगे कि जी बुलेट की कनेटिक एनर्जी है जो वो टारगेट के जाके स्ट्राइक करती है तो हीट के कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बट उही हीट जी है दैट हीट एनर्जी जो डिवेलप हुई है उस टारगेट के उस ब्लॉक के वो वापस कन्वर्ट नहीं हो सकती इनटू द कनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। वैरी सिंपल, ये तो सानू पता ही है कि इतना तो कदे भी नहीं होएगा, ठीक है ना। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो दस रहा है कि चेंज अकर कर रही है, बट चेंज दूसरी साइड पर अकर क्यों नहीं कर रही, डायरेक्शन ऑफ चेंज नहीं सानू दसदा जी, ठीक है ना। दूसरी लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज कि कितनी चेंज अकर करेगी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਇੰਜਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 100% ਹੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਆਫ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that cannot be converted into work under any conditions, ठीक है जी। तो ये लिमिटेशंस है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दियां कि चेंज अकर कर रही है वर्क टू हीट, ठीक है, बट किस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਅਕਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੈਨ ਅਕਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਡਸ ਨਾਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ in which change can occur, ठीक है। सेकंड है the first law of thermodynamics does not give any idea about extent of change, ठीक है। this is also very important, तो इसनों तुसी याद रखना है, ठीक है, ठीक है जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशंस है तो लिमिटेशंस दूर की जी सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ दियां लिमिटेशंस है वही सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उत्थों ही सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दियां जो स्टेटमेंट्स है वो साढ़े कोले बनदियां है। दो स्टेटमेंट्स है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दियां ते बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो यही है जी असीं गल इत्थे कीती है कि जे कोई हीट इंजन जिहड़ा है असीं कोई हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करते हैं, असीं हीट इंजन बनाया है, ठीक है, वो की करता है जी वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रेजरवायर, किसी सोर्स तो हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस हीट ਨੂੰ 100% ऑफ हीट ਨੂੰ वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ नहीं कर सकता कि 100% ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। यही मेन स्टेटमेंट है जी, दिस इज द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि 100% ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसनों ਅਸੀਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डिस्कस करांगे जी किवें, ठीक है, क्यों नहीं ये हो सकता। सैकेंड है जी क्लॉजियस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सैल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सैल्फ एक्टिंग मशीन। सैल्फ एक्टिंग मशीन ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ એનર્ਜੀ नहीं ਲੈ ਰਹੀ, ठीक है, अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी कि किसी की कोई हैल्प नहीं लै रही, बाहरली एजेंसी तो कोई हैल्प नहीं लै रही, अपने आप दे विच ही काम कर रही है, तो विच विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टैंपरेचर टू बॉडी एट हायर टैंपरेचर, ठीक है। देखो हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम द हाई टैंपरेचर टू लो, ठीक है, हीट ने फ्लो करना है फ्रॉम द हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर, ठीक है। यही इस स्टेटमेंट के कहा गया है कि हीट फ्रॉम द फ्रॉम द बॉडी एट द लोअर टैंपरेचर टू बॉडी एट द हायर टैंपरेचर अपने आप हीट फ्लो नहीं करेगी, तो कोई भी एजेंसी जी है उसकी हैल्प नहीं कर रही ता, ठीक है। देखो असी एक एग्जाम्पल लेने हैं रैफ्रिजरेटर की, ठीक है, तो रैफ्रिजरेटर के एक कंप्रैसर है जो वर्क कर रहा है, असी उसनों एक्सटर्नल एजेंसी उसनों लगातार एनर्जी दे रही है, इलैक्ट्रिसिटी असी उसनों सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो बॉडीज़ है वो लो टैंपरेचर तो हीट हाई टैंपरेचर के बाहर रूम के ट्रांसफर कर रही है। AC के भी यही हो रहा है, ठीक है ना। तो जो मशीन ना हो तो अपने आप ये चीज़ पॉसीबल नहीं होएगी, ठीक है। अपने आप तो हीट जी है जिवें देखो असीं गरम एक चाह का कप रख दिंदे आ तो उहदे विचों हीट जी है वो बाहर सराउंडिंग्स दे विच जाएगी फ्रॉम द हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर, वो चाह का कप अपने आप गर्म नहीं होएगा, ठीक है। इस तरह जो कोल्ड ड्रिंक पे है तो वो सराउंडिंग्स तो ज़्यादा हीट पे है, तो जो एक कोल्ड ड्रिंक पे है तो सराउंडिंग्स तो लैस हीट पे है, लैस टैंपरेचर पे है, तो सराउंडिंग्स तो हीट कोल्ड ड्रिंक के जाएगी अपने आप, ठीक है ना, तो पिया पिया होर ठंडा नहीं होएगा।
ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਬੋਡੀ ਐਟ ਦਾ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।